ہم ایک سفر کر رہے ہیں زندگی کا، جس میں تدبیر بھی ہے اور جس میں تقدیر بھی ہے۔ تدبیر اتنی سی ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو اختیار دے دیا ہے، یہ کر لو اس طرح ہو جائے گا۔ کھیتی کر لو تو کھیتی کا نفع پالو گے، دکان کر لو تو دکان کا نفع پالو گے، زندگی میں جو محنت کر لو گے اس کا نفع پالو گے۔ پھر نفع بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ضروری نہیں کہ جتنی کوشش، جتنی محنت، جتنی جان مارے گا اس کو اتنا نفع ملے گا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جس طرح یہ میرا بیٹا ہے، اس وقت وہ 8-10 سال کا تھا، اس طرح میرے ابے نے میری انگلی پکڑی ہوئی تھی اور میرا والد کہتا تھا بیٹا ہم مالدار ہو جائیں گے، ہمارے دن پھر جائیں گے، ہم غربت سے نکل جائیں گے، ہم حالات کی گردش سے ہیں۔ آج میرا بیٹا اتنا ہو گیا اور میرا والد انہی حالات میں مر گیا، ہم حالات سے نہ نکل۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز پہ محنت کر، لیس الانسان الا ما سعى، کہ ہم نے انسان کو کوشش اور محنت سے جوڑ دیا ہے، نہیں انسان مگر کوشش، کہ ہم نے انسان کو کوشش اور محنت سے جوڑ دیا۔ یہ ساری چیزیں تدبیر ہیں، یہ ساری چیزیں تدبیر ہیں، اور ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو تقدیر کہتے ہیں۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، صدقے تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ یہ دو لفظ کہا ہے میں نے، ان دو لفظوں کی تہہ تک پہنچے گا۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی اور صدقے تقدیریں بدل دیتی۔ کبھی نصیب بنتا ہے، غور سے سنیے گا، اور کبھی نصیب بنایا جاتا ہے۔ جو بنتا ہے وہ اس کا عمل ہے، جو بنایا جاتا ہے اس کی وضاحت بھی کر دوں، وہ ہے جو کہتے ہیں کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ یہ بنایا جاتا ہے، یہ بنایا جاتا ہے کیا کہ جو چاہا اور اللہ نے کر دیا، اور رب کے فیصلے اس کے موافق ہو گئے، اس کے مخالف نہ ہو۔ کچھ بول ایسے ہوتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں، کوئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو نظام کو پلٹ کے میرے موافق کر دیتی ہیں، جو نظام کو پلٹ کے رب کی رحمتوں کو میری جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ عوف بن مالک ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے بیٹے کو کفار نے قید کر لیا اور سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عوف بن مالک حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا، چھوڑ نہیں رہے، کیا کروں؟ تو آقا نے فرمایا اسے کہے کہ وہ اللہ کی طرف توجہ کرے، مفہوم ہے، اور تقوی اختیار کرے، اور پھر فرمایا کہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیت لقد جاءکم رسول، اس کو مسلسل پڑھتا رہے، صبح شام پڑھتے، الفاظ ہیں، مفہوم اصغر۔ انہوں نے بیٹے کو پیغام پہنچوا دیا کسی طرح سے، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور جب پڑھتا رہا کچھ ہی عرصے کے بعد وہ زنجیریں جن سے باندھا ہوا تھا دیکھا تو ٹوٹی ہوئی ہیں، خود بخود ٹوٹی ہوئی ہیں، اور وہ آزاد ہے۔ میں نے سورۃ توبہ کی آخری دو آیات لقد جاءکم رسول کے آخر تک، آخری دو آیتیں کو بہت فائدے کچھ بتائے تھے۔ ایک کمال اس کا وہ بتاتا ہوں جس کے اندر حفاظت ہے اور روٹی ہے، رزق ہے۔ اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں میں آپ سے، اور وہ سنیے گا غور سے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت مالدار تھا اور میرا بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑا بزنس تھا۔ میرے پاس ایک باندی آئی، مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی محبت میں اپنے کاروبار کو بھول گیا، سب کچھ بھول گیا اس کی محبت میں، سب کچھ اتنا بھولا کہ میرا کاروبار آخر آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گیا، اور نیچے جاتے 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 میری ہر چیز میری ختم ہو گئی، حتیٰ کہ میں گھر کو بیچنے لگ گیا، گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچنا شروع کر دیا، پھر حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گئی اور میں نے گھر کے ملبے کو بیچنا شروع کر دیا، اینٹیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، توڑ کے اتنا میں نے گھر باقی رکھا کہ سر چھپانے کی جگہ رہے۔ زچگی کا وقت تھا، ذرا غور سے سنیے گا یہ واقعہ شروع کہاں سے ہو رہا، جاتا کہاں ہے، سنبھل کے بیٹھیے گا، ہر سونے والا بھی ہر جاگنے والا بھی۔ زچگی کا وقت تھا، میری بیوی نے مجھے کہا کہیں سے گوشت لیا، کہیں سے شہد لیا، کہیں سے آٹا لیا، میری ضرورت ہے، اور میں بیوی کو حسرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں اسی کی محبت میں، اسی باندی کی محبت میں، اسی کے عشق میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا تھا، میں تو کونج مانگوں کر لاؤں، اسی میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا تھا۔ پھرتے ہیں میر خار کچھ پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، سب کچھ ختم۔
और पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैं घर से निकला और निकला घर से, और मेरे अंदर एक कैफियत आई कि अब इस घर में उस वक्त तक मुंह नहीं करूंगा जब तक कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ कर नहीं सकूंगा। बस मेरे अंदर यह कैफियत आई और मैं घर से निकला, और निकलते मेरी कोई मंजिल नहीं थी। एक शहर में गया, उससे अगले शहर में गया, उससे अगले शहर में गया, उससे अगले शहर में गया, महीनों का सफर करके एक जगह गया। एक जगह जाके मैंने मजदूरी करना शुरू कर दी। कहा कि मैं एक मालिक के घर गया, उसका गारा उठाना था, ईंटें बनानी थी, गारे से ईंटें बनानी थी, उसके घर का काम करना था। वो था कोई दरवेश, ऐसे देख के मुझे कहने लगा, बीवी को गोश्त, शहद, आटा तो दे आता, ऐसे छोड़ के आ गया। अच्छा तेरा अल्लाह पाक तेरी हिफाजत करेगा, तू ऐसा कर, तू लगत जा हुक्म पढ़ता रहना, तेरे काम बन जाएगा। कहा कि उसकी बात से मुझे लगा तो झटका कि ये बीवी वाला वाकया, ये आटे वाला वाकया, ये गोश्त वाला वाकया तो मुझे पता है, और मैं अपनी बीवी की जरूरियात में मारा हुआ हूं, थका हुआ हूं, इसको कैसे खबर है? इसको तो पता नहीं। उसकी इस बात ने मुझे चौंका दिया, हिला दिया। मैं मजदूरी की चला आया, फिर मैं कभी कभी ये पढ़ता रहता था, उसकी बात याद आती तो पढ़ता रहता था। साल गुजरते गए, गुजरते गए, गुजरते गए। जब साल गुजर गए, एक रिवायत में यह वाकया सिर्फ बगैर लकत जाकुम के है, और एक रिवायत हदीस की नहीं, वाकये की रिवायत। एक रिवायत में सूरत तौबा के साथ है। कहने लगे हालात गुजरते गए, दिन रात गुजरते 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 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, और मैं मालदार हो गया, और बहुत मालदार हो गया। मेरे जी में आया कि अपने बाकी जिंदगी का वक्त अपने वतन में जाके गुजारूं। बूढ़ा हो गया था। मैं आया तो रास्ते में मुझे कज़ाक मिले, डाकू मिले, और उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, और मेरे तन के कपड़े थे, मेरा हर सब कुछ खत्म हो गया। अब फिर वही फकीर का फकीर, खाली का खाली। और एक जगह मैंने खड़े होके मैंने एक बंदे से फरियाद की, काफिला जा रहा था, मुझे फला शहर पहुंचा दोगे? मैं उस शहर का रहने वाला हूं, वस्त का वस्त, वासती, बाद लोगों अपने नाम के साथ ना वासती लिखते हैं, वस्त का रहने वाला हूं, क्या मुझे वहां पहुंचा दोगे? कहने लगा हां। उस शहर में पहुंचाया। मैं ऐसी अंदाजों से तलाश करते करते अपने घर पे पहुंचा। सुने तदबीर और तकदीर का निजाम, जरा अब तकदीर का निजाम शुरू हो रहा है, अब जरा संभल के बैठिएगा। और कहा कि मैं जमाने का मारा हुआ, हालात की गर्दिशें, गुर्बत भी देखी, तंगदस्ती भी देखी, माल देखा पहले, फिर बांदी से मोहब्बत हो गई, फिर गुर्बत पे आ गया, फिर तंगदस्ती पे आ गया, फिर घर भी बेच डाला, आखिर घर से निकल गया, मुंह कर गया कहीं, फिर मैंने मजदूरियां की, फिर मालदारी पे आ गया, फिर सारे माल का निचोड़ आखिरकार मुझसे डाकुओं ने, कज़ाकों ने लूट लिया। फिर मैंने आखिरी उम्र की गुर्बत और तंगदस्ती देखी। अब इन्हीं जिंदगी की कैफियतों में बीवी मर गई होगी, वो बच्चा पता नहीं पैदा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ना मालूम क्या हाल होगा, क्या वाकयात होंगे। इन्हीं सोचों में ऊपर नीचे तलाश करते करते अपने घर की तरफ गया। देखा तो बहुत बड़ा महल है, और बाहर दुकानें हैं, और चहल पहल है। हैरान, काश, लगता है मेरा मकान बिक गया। और बहुत बड़ी हवेली थी, वो बिक गया, और किसी मालदार ने या वजीर ने ले लिया, और उसने अपना घर बना लिया, और मुझे अपनी मुफलसी पे और रोना आया, अपने हालात पे और करना आया। मुझे कौन जानेगा। वहां एक दुकान थी सब्जी वाले की, मैं उसके पास जाके बैठ गया। उसने मुझे देखा, क्या कोई परदेशी नजर आते हैं? कि हाँ परदेशी हूं। ये घर किसका है? उसने कहा मामून की दाया का घर है। अच्छा, वो जिंदा है? उसने कहा हाँ। कहने लगा उसकी कोई औलाद भी है? कि हाँ एक बेटा है। कहने लगा वो कौन है? कहने मामून रशीद का वो खजांची है। वो कहां है? कहा हवेली के अंदर है, चले जाएं। आप मिलना चाहते हैं? हाँ मैं मिलना चाहता हूं। कहने लगे जब मैंने जवान को देखा तो मैंने कही तो मेरी शक्ल है, मेरा बेटा है। वो गिरा हुआ था, मुंशी लिख रहे थे, माल तोला जा रहा था, महल था अजीबो गरीब। मैं भी जाके बैठ गया। उन्हें हाँ बाबा जी क्या कहते हो? मैं तेरा बाप हूं। उसने देखा, ये मेरा घर है बेटा, मैं तेरा बाप हूं। शक्ल मिला अपने से मुझसे। उसने ऐसे ठंडी आंख भरी उठ के चला गया, और जाके अपने गुलामों को कहा कि उस बाबे को ले आओ। मैंने पर्दे के पीछे आहट सुनी। मैंने देखा तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े पर्दे पड़े हुए, महल, बड़ा लाजवाब मकान। मुझसे कहने लगे आप मेरे वालिद कैसे हैं? बड़े नरम लहजे में, जैसे कोई बंदा निशानियां पूछने की कोशिश कर रहा हो। कहने बेटा इसका वालिद ऐसा हूं, मैं बेहतरीन सौदागर था, एक बांदी से मोहब्बत हो गई, उसमें मैंने सब कुछ अपना लुटा दिया,
सब कुछ खत्म कर दिया। मैं एक पल उससे जुदा नहीं होता था, हत्ता कि मेरा कारोबार खत्म हो गया। मेरी गैर मौजूदगी में मेरा कारोबार, मेरे उम्माल, मेरे निगरान खा गए और मैं घर तोड़ के बेचना शुरू कर दिया। हत्ता कि मेरा घर भी खत्म हो गया। फिर मेरा एक बच्चा था, वो यकीनन तू ही होगा। उसकी विलादत थी और मेरी बीवी ने कहा गोश्त, शहद और आटा कहीं से ले आए, और मेरे पास था नहीं। और मैं गम और गैरत के मारे मुंह कर गया और 20 साल के बाद वापस आया। जब ये बात सुनी ना, पीछे से आके बांधी ने इसको लिपट लिया, इस पे लिपट गई कि हाँ, तू ही मेरी जिंदगी का साथी है और वाकई ये तेरा बेटा है और मैं ही तेरी बीवी हूं। मैं तो तेरे इंतजार में अपनी उम्मीदें सारी खत्म कर बैठी थी और गले लग के रोई बहुत ज्यादा। और मैंने उसे कहा ये कैसे? कहा पता नहीं कोई दुआ थी, तू करके गया था, क्या था? मामून पैदा हुआ, किसी का दूध नहीं पीता था। अमीन जुबैदा का बेटा था, याद रखिएगा। मामून बांदी का बेटा था, अमीन और रशीद जुबैदा का बेटा था। अब्दुल मलिक की बेटी थी। मैं मीना से आ रहा था वापस, वाकया याद रखिएगा। जुबैदा नहर के करीब गुजरा तो मैंने कहा ठहर जाओ, हालत एहराम में है। हम मीना से जा रहे थे हरम में, पिछले साल, गालिबन पिछले साल की बात है। सामने जुबैदा नहर आ गई, उसके आसार अभी तक मिना, अरफात, मुजदलफा में होते हुए जाते हैं और मक्का तक आते थे। तो मैंने कहा ठहर जाओ, यहां खड़े होकर दुआ मांगते हैं। एक सखी की सखावत है। वफाल वफा के हवाले से मैंने 3-4 जगहों पे यह बात पढ़ी है और हजरत शाह हदीस मौलाना ज़िकिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फज़ल सदक़ात में भी लिखी है कि सखी की तुरबत के साथ पास जाके जो दुआ मांगे कबूल होती है। मैंने कहा सखी की बनाई हुई नहर है तो जाके इससे दुआ मांगते हैं। और फिर खड़े होकर दुआ मांगे कि सखी, मौला तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं है। एक तेरी सखी बंदी ने, जुबैदा ने यह नहर बनवाई थी और बड़े प्यासों ने, इंसानों ने, जिन्नों ने, हशरात ने इससे प्यास बुझाई थी। मौला ये सखावत चलती रही, आज पानी आम हो गया है, लेकिन इसकी सखावत की बरकत हैं और मौला इसकी सखावत की बरकत मुझे दे, मेरी नस्लों में अता फरमा। वो बड़ी देर तक हालत एहराम में मैंने दुआ मांगी थी। कुदरती वो एहराम की हालत थी और वो अय्याम थे हज के और सामने जुबैदा नहर थी। ये मैंने आपको एक अपना अमल बताया। तो जुबैदा, अमीन और रशीद जुबैदा से था और मामून और रशीद बांदी से था। जब मामून पैदा हुआ तो मां का दूध नहीं पीता था। उस वक्त की जितनी खवातीन के बच्चे हुए थे सबको बुलाया गया कि सबके सीने में दूध था कि शायद उनका दूध पी ले। उसने किसी का दूध नहीं पिया। फिर मुझे बुलाया गया और जब मैंने मामून का दूध, तो मामून ने दूध पीना शुरू कर दिया। बस एक पल में मेरी हैसियत शाही दाइया की बन गई। मेरी हैसियत शाही हो गई। गुर्बत की मारी, तंगदस्तियों की मारी, एड़ियां रगड़ रगड़ के बच्चा जना था। अब मेरा बच्चा भी मामून के साथ पल रहा और मैं भी बादशाह हारून के घर में पल रही। क्यों? हारून के बच्चे को दूध की जरूरत है और मेरे बगैर दूध मिलता नहीं। एक तरफ से अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, एक तरफ से मामून को दूध पिलाती थी। शाही ताकत में मेरा बच्चा भी पलता गया, मैं भी पलता गया, मेरा बच्चा भी पलता गया, मैं भी पलता गया, बढ़ते 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 हत्ता कि ये सारा महल वही है, ये सारा ताज और सारा तख्त ये वही है कि मामून किसी का दूध ही नहीं पीता था। वो दूध का पिलाना मेरे नसीब में आया और मेरे नसीब के पीछे क्या था? कहा तेरे नसीब के पीछे था लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये था। मैं खाली हो गया, खाली गया था, खाली आया, बड़ा कमाया। खाली होके खाली आया, जब आया तो अपने घर को भरा पाया।